السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا مکمل واقعہ سنائیں گے حدیث کے ذریعے سے انشاءاللہ۔ تو بنے رہیے گا ہماری ویڈیو کے لاسٹ تک۔ توجہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے باپ کا نام آزر تھا۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام نمرود تھا جو خدا کا انکاری تھا۔ نمرود جب گدی پر بیٹھا اور اس کی راہ کے تمام کانٹے دور ہو گئے تو اس نے ملک میں انصاف کو بڑھاوا دیا۔ رات دن سیوا میں لگا رہتا، یہاں تک کہ پورے ملک میں سکھ شانتی کا بول بالا ہو گیا۔ جب اس طرح حکومت کرتے کرتے ایک مدت گزر گئی تو شیطان نے اس کو بھی گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے دماغ میں بھی گندے خیالات بھرنے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ شروع کر دیا۔ اپنی مورتیاں ہر عبادت خانے میں بھجوا دی تاکہ لوگ اس کو سجدہ کرے اور اس کی پوجا کرے۔ ایک دن نجومیوں نے ستاروں پر نظر کر کے نمرود سے یہ عرض کیا کہ اس سال اس شہر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرا ملک اور تیرا دین تباہ کر دے گا۔ نمرود گھبرا گیا اور اس نے بے قرار ہو کر حکم دے دیا کہ اس سال جتنے لڑکے پیدا ہو سب کو قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں پر حمل کی نشانیاں ظاہر ہوئی تو وہ بیوی سب کو معلوم ہو جانے کے ڈر سے باہر چلی گئی۔ جب جنگل میں ایک سوکھی نہر میں پہنچی تو آنکھوں کا یہ نور پیدا ہوا۔ ماں کا دل چہرہ مبارک دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہاں نہر کے پاس ایک غار کھو تھا، وہاں لوگوں کا آنا جانا بالکل نہ ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے اس خوبصورت بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا اور وہاں سے آنسو بھرے دل کو پریشان کیے واپس گھر کو لوٹ آئی۔ پھر جب اپنے دل کے ٹکڑے کو دیکھ کر اس غار میں آئی تو اسے زندہ اور خوش دیکھ کر ان کی آنکھوں میں محبت کے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک انگوٹھے سے دودھ اور ایک سے شہد پی رہے ہیں۔ ایسی حالت دیکھ کر ماں بے حد تعجب میں پڑ گئی، خوشی بھی ہوئی، فوراً چھاتی کو منہ سے لگا دیا، پھر اپنا دودھ پلایا۔ دودھ پلانے کے بعد روتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ اسی طرح جب جب انہیں موقع ملتا وہاں جاتی، دودھ پلا کر چلی آتی۔ جب کبھی ماں کو پہنچنے میں دیر ہو جاتی تھی تو وہ اپنے انگوٹھے منہ میں ڈال لیتے اور انہیں چوس چوس کر اپنا پیٹ بھر لیتے۔ ماں کا دودھ پلانا تو ایک بہانہ تھا، ورنہ اصل کھلانے پلانے والا تو اللہ ہے اور وہی انہیں کھلا پلا رہا تھا۔ حضرت ابن عباس نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے جیسے اور لڑکے ایک ہفتے میں بڑھتے تھے۔ وہ ایک ہفتے میں اتنا بڑھ جاتے تھے کہ اور لڑکے ایک مہینے میں بھی مشکل سے بڑھ پائیں، اور وہ ایک مہینے میں اتنا بڑھ جاتے تھے کہ دوسرے بچے سال میں اتنا بڑھ پاتے تھے، یعنی کہ اتنے بڑے ہو جاتے تھے۔ اس طرح جب دودھ پینے کی مدت ختم ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کچھ سمجھ پیدا ہوئی تو ایک دن ان کی ماں نے رات کو آ کر ملاقات کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، کیا اس اندھیرے کے علاوہ اور کوئی دوسری جگہ نہیں ہے؟ اس جنگلی علاقے کے علاوہ کوئی دوسرا مکان نہیں ہے؟ ماں نے کہا کہ دشمنوں کے ڈر سے تجھ کو یہاں چھپایا ہے اور تیری حفاظت کے لیے اس گھر کو چنا ہے۔ ویسے تو دنیا بہت لمبی چوڑی ہے اور آسمان بہت اونچا اور بلند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو مجھ کو غار میں آرام نہیں ملتا اور نہ مجھے یہ جگہ ہی اچھی لگتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب غار سے باہر نکلے اور آسمان پر ستارے کو دیکھا تو فرمایا، یہ میرا پالن ہار ہے۔ ڈوب گیا تو فرمایا، مجھے ڈوبنے والے پسند نہیں، یعنی ڈوبنے والے پالن ہار سے میں محبت نہیں کرتا۔ یقین کی اس نظر سے پھر چاند کو دیکھا جو چمک رہا تھا تو فرمایا کہ یہی میرا رب ہے، اب میں اسی سے واسطہ رکھوں گا۔ لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو اس پر بھی ان کا اعتقاد ختم ہو گیا۔ پھر سورج چمکا، اب بولے، یہی میرا خدا ہے، یہ سب سے بڑا ہے اور اس کی خدائی تو اس کے نور سے ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو خدا بنانے سے انکار کر دیا اور بولے، سوائے اس خدا کے جو بے مثال اور بے زوال ہے، میں اب کسی پر یقین نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ماں گھر لے آئی۔ ان تمام باتوں کو ان کے باپ کو سنایا۔ آزر بہت خوش ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی برائی بتانا شروع کر دی اور ان کے پوجنے والوں پر لعنت بھیجنی شروع کر دی اور نمرود کو یہ باتیں معلوم ہوئی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نڈر تھے ہی، انہیں تو بس اللہ کا ڈر تھا۔ وہ نمرود سے کیا ڈرتے۔ وہ وہاں پہنچے۔ پہنچنے پر اور لوگوں کی طرح انہوں نے نمرود کو نہ
सजदा किया न सर झुकाया। नमरूद को झुंझुलाहट हुई, वह गुस्से से बोला तू मुझको सजदा क्यों नहीं करता? बोले सिवाय हकीकी खुदा के मैं किसी को सजदा नहीं करता। नमरूद ने पूछा तेरा परवरदिगार कौन है, वह क्या कहता है? बोले वह सब को पैदा करने वाला है, सबको मारता है जिलाता है। नमरूद बोला मैं भी जिसे चाहता हूँ मार देता हूँ और जिसे चाहता हूँ जिंदा रखता हूँ, इसलिए मैं भी तो पालनहार हूँ। फिर दो कैदियों को कैद खाने से बुलवाया, इन दोनों को फांसी होनी थी, एक को तो फौरन फांसी दे दी और दूसरे को छोड़ दिया और बोला देखो हमने भी तो एक को जिलाया और एक को मारा, हम है परवरदिगार और हमारा काम भी यही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा परवरदिगार सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तू सच्चा है तो उसे पश्चिम से निकाल दे, जब मैं जानूं कि तू वाकई खुदा है। इस मांग से नमरूद और उसे खुदा जानने वाले सब खामोश हो गए, इसका कोई जवाब ना बन पड़ा। हाँ, जिन्होंने यह मंजर देखा और इन बातों को सुना उनमें से अक्सर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातों पर ईमान लाए और मुसलमान हो गए। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आजर से पूछा कि ए बाप, यह क्या चीजें हैं जिनकी तुम बंदगी करते हो और दिन व रात उनके आगे माथा टेकते हो? आजर ने कहा कि यह हमारे खुदा हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनकी कैसी बंदगी करते हो कि इनके ना कान है ना आंखें, ना तुमको नफा पहुंचा सके ना नुकसान दे सके। आजर ने इसका कोई जवाब ना दिया। हाँ बोला इब्राहिम, अगर तू हमारे खुदाओं से बेजार होगा तो तू सजा पाएगा, तुझे पत्थरों से मार मार कर हलाक कर दिया जाएगा। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में इरादा कर लिया कि इन बुतों का सिर्फ बुत होना हम लोगों को बताकर रहेंगे, ताकि लोगों को मालूम तो हो कि यह सिर्फ पत्थर हैं, इनके पूजने में ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान। उस वक्त पूरी कौम में यह रस्म थी कि जब ईद का दिन आता था तो हर एक अच्छे कपड़े पहनकर अपने को सजता धजता था और अच्छे से अच्छा खाना पकाकर बुतों के सामने रखकर फिर ईदगाह को जाता था। जब वापस होते तो उसे इस्तेमाल करते और यह समझते कि इस तरह पूरे साल रोजी में कोई कमी ना होगी। जब ईद का दिन आया तब सब ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने साथ चलने को कहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारों की तरफ देखकर कहा कि मैं बीमार हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ चलने में मजबूरी है, और मन में सोचा कि मैं इसके बुतों के साथ एक खेल करूँगा और इन्हें सबक पढ़ाऊंगा कि यह किसी काम के नहीं है। जब सब लोग खाना खाली करके ईदगाह पहुँचे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत खाने में पहुँचे। उन्होंने मन बहलावे के तौर पर पूछा कि ऐसे अच्छे खाने तुमने खाए क्यों नहीं? बुत आखिर बोलते कैसे, उन्हें बोलने की ताकत नहीं। फिर तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी लेकर सबके सर तोड़ दिए, किसी का हाथ काटे और किसी का कान ऐठा, मगर बड़े बुत को बचाए रखा और उसके गले में कुल्हाड़ी लटका दी और बुत खाना बंद करके जल्द से जल्द वहां से भाग आए। लोग जब ईदगाह से लौटकर तय खाने में दाखिल हुए तो यह देखकर हैरान रह गए कि ना किसी का हाथ है ना किसी का कान, सब बड़ी जिल्लत से जमीन पर पड़े हैं। बोले किस जालिम ने यह तमाशा हमको दिखाया है और हमारे खुदाओं को तोड़कर हमारे दिलों को जलाया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो हमेशा बुतों पर और बुत पूजने वालों पर लान तान किया करते थे और उनके शिर्क और बेईमानी पर लानत भेजा करते थे। सबके दिल में यही ख्याल हुआ कि हो ना हो यह काम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही का है। सबने यही सोचा, काश इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई मार डालता। फिर क्या था, सबने मिलकर नमरूद से फरियाद की कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तय खाने का अदब व एहतराम धूल में मिला दिया है। नमरूद को भी बड़ा ताव आया, उसने फौरन इब्राहिम को बुलाने के लिए आदमी भेज दिया। नमरूद भी और कौम के लोग भी सभी गुस्से में भरे बैठे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आते ही सब एक साथ बोल पड़े, इब्राहिम बता यह हरकत किसने की है? फरमाया कि तुम इस बात को बड़े बुत से पूछो, तुम उसी की सबसे ज्यादा इज्जत करते हो, वह तुमसे कुछ ना छिपाएगा। वह तुम्हारा बड़ा खुदा जो है, क्या इतना भी वह ना बताएगा? उन लोगों के पास इसका जवाब ही क्या था, बड़ी परेशानी में पड़ गए।
कि अब क्या करें, फिर भी कुछ तो कहना ही था। बोले, तुम तो जानते हो कि बुत नहीं बोला करते, उनमें बोलने की ताकत ही नहीं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर ऐसे खुदाओं की पूजा का क्या फायदा जब यह न बोल सके, न नफा पहुंचा सके, न नुकसान। ऐसे खुदाओं को जो पूजे उससे बड़ा जाहिल कौन होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस बात का कुछ लोगों पर इतना असर हुआ कि वे फौरन ईमान ले आए और जिनका पहले से ईमान था उनका ईमान और पक्का हो गया। नमरूद ने इस मामले में बड़ा देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद का हुक्म दे दिया और सजा सुनाई कि इसे आग में फेंक दो ताकि यह जले और हमारे दिलों में जो गुस्से की आग लगी हुई है वह बुझे। जालिम कौम इस फैसले से खुश हो गई। फिर क्या था, पहाड़ की तलेटी में एक 160 गज का मकान बनाया गया। वहाँ देश देश से लकड़ियाँ जमा करके लाई गई। उन लकड़ियों में आग लगा दी गई। उसमें आग इस तरह धमक धमक कर जलने लगी कि चिड़ियों के उड़ने तक का रास्ता बंद हो गया। कोई जानवर उस तक पहुंचने की हिम्मत न कर पाता था। सवाल पैदा हुआ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसमें डाले कैसे जाएं? किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सब परेशान थे। फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए रहनुमाई शैतान ने की। सिखाया, तुम एक तोप बनाओ और 2-3 धुनी पर गड़ाओ, फिर झूले की तरह झुलाकर आग में डालो और अपने दिल की हसरत निकालो। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तोक व जंजीर में बांध कर तोप पर बिठाया तो आसमान व जमीन के फरिश्तों ने रो रो कर शोर मचाया कि खुदाया, तेरे खलील मित्र दोस्त से उसके दुश्मन यह मामला करते हैं। हमसे तो यह जुल्म देखा नहीं जा रहा है। हमको हुक्म हो तो इनको अभी छोड़ दे और तेरे दोस्त को इन दुश्मनों से बचा ले। हुक्म हुआ कि अगर तुमसे इब्राहिम मदद मांगे तो बेहतर है, उनकी मदद कर सकते हो। फिर क्या था, 2 फरिश्ते जो हवा पानी पर मुकर्रर थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए। बोले, अगर हुक्म करे तो यह हवा और बारिश एक पल में इसको बुझा दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस मदद को कबूल करने से इनकार कर दिया। वे फरिश्ते बहुत गम में डूब गए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में फेंके जाने के लिए तोप के झूले पर आए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हवा की फजा में हाजिर हुए और कहा कि कुछ जरूरत हो तो बोलो कि इस आग से इन दुश्मनों को भून कर रख दूं और तुम्हें इन चोलों से बचा लूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, तुम्हारी मदद की हमें जरूरत नहीं। अगर अल्लाह इसमें राजी है तो हम भी उसी के लिए जी रहे हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले, ठीक है, फिर उसी से कहो कि वह इस मुसीबत से बचाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, वह खुद सब कुछ देख सुन रहा है। मेरे कहने सुनने का फायदा उसको जो करना होगा वह तो करेगा ही। इस तरह जब अल्लाह ने देख लिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उसी पर भरोसा है, उसकी मोहब्बत जोश में आई, फौरन हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा और उसे सलामती शांति दे और उसे सलामती शांत दे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अगर अल्लाह के कलाम में सलामती लफ्ज न होता तो मारे ठंडक के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आराम न होता। फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाजू पकड़कर बड़े आराम से उन्हें जमीन पर बिठाया। उसी वक्त जन्नत के दरोगा ने कीमती लिबास लाकर पहनाया और उनके आसपास 20-20 गज तक गुल, रेहान, सब्जे और दूसरे फूलों से उसे सजा दिया। इस तरह वह गुलजार बन गया। फिर वहाँ एक मीठे पानी का चश्मा भी बह निकला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाल पर अल्लाह का ऐसा फजल हुआ कि हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि सुबह शाम स्वाद वाला खाना वहाँ पहुँचाया करे ताकि खुश और बेगम होकर मेरा प्यारा खाया करे। अब 7 दिन इस वाक़ये को बीत गए तो नमरूदी यह देखने निकले कि आग बुझी या नहीं। एक ऊंचे महल पर नमरूद चढ़ गया। हमेशा देखा करता था। उसे यह डर था कि हो सकता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने खुदा की मदद से बच जाए और अगर वह बच गया तो इसका मतलब है कि अब न मेरी खैरियत है और न मेरे मुल्क की। अपने मन का भेद वह अपने साथियों से न कहता बल्कि उन्हें खुश करने और तसल्ली देने के लिए यही कहा करता कि यह तो ऐसी आग
थी कि कड़े से कड़ा पत्थर भी अगर उसमें डाल दिया जाए तो वह पिघल जाए। उससे बच निकलने की इंसान में ताकत कहाँ। एक दिन नमरूद ने अपने महल से खूब गौर से देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चारों तरफ तो सब फूल ही फूल हैं, खूबसूरत से खूबसूरत, और रंग बिरंगे वहाँ तो बजाय आग के फुलवारी कायम है, मीठे पानी का चश्मा भी जारी है, वहाँ तो बड़े मजे नजर आ रहे हैं। नमरूद ऐसा देखकर हैरान भी हुआ और परेशान भी। उसके मन में उथल पुथल शुरू हो गई, उसका दिल बेचैन हो उठा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, बोला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऐसी राख कर देने वाली आग से तू कैसे बच गया, बल्कि यह जन्नत जैसी फुलवारी किसने पैदा कर दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह तो उस बेपनाह कुदरत वाले अल्लाह का एक मामूली सा चमत्कार है, उसकी ताकत तो बहुत है। नमरूद बोला, जिसकी कुदरत का यह मामूली चमत्कार है, सच तो यह है कि वह बहुत बड़ा परवरदिगार है। फिर तो नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहाँ से बाहर लाने का ऑर्डर दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम राख के पहाड़ों से निकलकर बाहर आ गए और अपने बाज व नसीहत में लग गए। नमरूद पर भी उन्होंने तबलीग फिर शुरू कर दी। नमरूद ने कुछ दिन की मोहलत मांगी और चाहा कि उसे कुछ सोचने का मौका दिया जाए। नमरूद का एक वजीर मंत्री हमान था, उससे मशवरा किया और ईमान लाने का इरादा जाहिर किया। उस दुश्मने खुदा ने कहा कि इतनी मुद्दत तक तो तुम खुदाई करते रहे और अब बंदगी रहा अपना कर, क्या सच्चाई और जिल्लत मोल लोगे। जब मुद्दत गुजर गई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ईमान लाने का तकाजा किया। नमरूद ने बड़ी गर्मी से अर्ज किया कि ईमान का कबूल करना मेरे लिए बहुत दुश्वार है, मगर तेरे परवरदिगार के लिए बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुर्बानी बगैर ईमान के कबूल नहीं की जाती। लेकिन नमरूद ना माना। उसने 4000 गायों, बहुत सी बकरियों और ऊँटों की कुर्बानी दे ही दी। लेकिन यह सब बेकार इसलिए कि हामान ने तो उसे बहका दिया था और उसने अपना ठिकाना जहन्नम बना ही लिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो, हर बयान आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।